Hello friends, this is Kumar and I welcome all of you to my YouTube channel. Friends, in this video I am going to discuss another novel by Toni Morrison and it is entitled as Beloved. Beloved was published in 1987 and it won Pulitzer Prize for Fiction in 1988. The setting of this novel has been set after the Civil War that happened in America around 1861 to 1865. In this war, the great American president Abraham Lincoln was the main force behind the happening of the Civil War that happened in America, and it was about the banning of the slave trade in America. So Abraham Lincoln wanted to ban the slave trade in America because he was against this from the very first day. Okay, so in 1861, this war started, and it was between the north side of the America and the south side of the America. The north side was in the supporter of banning the slave trade in America, but the south, they were against it, and that's how the war started between these two groups, and finally the north side won, and the slave trade was finally banned in America. But the loss was a very great of this war, as we lost the greatest and the loved president of America, that is Abraham Lincoln. So the setting of this novel has been set after this American Civil War, and specifically it is about 1873. The novel is starting from the point of 1873, in the year of 1873, and this novel is also about a girl. Like the previous novel, The Bluest Eye was about a black girl. It is also about a black girl that is not Piccola, but is Beloved. The Beloved is also the eponymous heroine of this novel, but the novel deals with the beloved's mother, that is Sethe. So Sethe is a middle-aged woman. She was a slave before this thing, and in the present she is living with her daughter in 124 house that is in Bluestone Road, and she is living with her daughter Denver in this house. And this novel deals with her life, how she came to be free, and what kind of suffering she has to go through in all her life. And that is what discussed in this novel. So it's a very amazing novel, and I'm sure that you will love the story of this novel. So let us start the story without any further delay. सो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है 1873 ईयर से, जब हमें पता चलता है कि जो सेथे है हमारी मेन इंपॉर्टेंट प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल की, और उसकी एक बेटी है डेनवर। वो अपनी बेटी डेनवर के साथ 124 हाउस ब्लूस्टोन रोड पे वहां पे रहती है। ये उसका जो घर है वो सिसिनाटी ओहियो में है। लाइक मोस्ट ऑफ द सेटिंग्स ऑफ टोनी मॉरिसन्स नॉवल, दिस नॉवल इज आल्सो सेट इन ओहियो। तो ओहियो में ये रह रहे हैं, और हमें पता चला है कि इसके जो दो बेटे हैं हार्वर्ड और बगलर, जब वो 13 साल के थे तो वो इस घर से भाग गए थे, इसको छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस घर में एक भूत रहता है, और ये भूत सेथे की बड़ी बेटी का है, जिसका नाम बिलव्ड था। एक्चुअली उसका कोई नाम नहीं था, लेकिन उसका नाम जो टॉमस्टोन पे था, उसके टॉमस्टोन पे जो सेथे थी उसने मात्र बिलव्ड ही लिखवा पाई थी, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थी एनग्रेविंग्स के लिए। ठीक है, तो ये माना जाता है कि वो जो बिलव्ड है उसी का भूत इस घर में रहता है, जिसकी वजह से इसके दो बेटे जो थे हार्वर्ड और बगलर, वो घर से भाग गए हैं। जब नॉवल की शुरुआत होती है तो हमें पता चलता है कि इसकी जो मदर इन लॉ थी बेबी सग्स, वो इससे 8 साल पहले खत्म हो चुकी है नॉवल की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ सेटिंग है नॉवल की शुरुआत की। हालांकि उस भूत की वजह से, उस गोस्ट की वजह से फैमिली में लगातार परेशानियां रहती हैं, लेकिन जो डेनवर उसकी बेटी है उसकी उस भूत से, उस गोस्ट से बहुत बनती है, क्योंकि ये आइसोलेटेड है अदर सोसाइटी से। अदर सोसाइटी इनके साथ मिलती जुलती नहीं है। ये कई सालों से इसी घर में अकेले रह रहे हैं। लेकिन एक दिन पोल डी इनके घर में आता है। पोल डी दोस्तों इसका फ्रेंड रह चुका है, इसका स्लेव मेट रह चुका है एक टाइम पे, जब जो सेथे स्लेव थी गार्नर्स के हाउस पे, गार्नर्स के स्वीट होम के यहाँ पे जब स्लेव थी सेथे, उस टाइम पे उनका एक साथी था पोल डी। पोल डी के अलावा कुछ और भी इसके साथी थे, जैसे पोल ए, पोल एफ, हेले, और फिर उसके अलावा 6 ये कुछ साथी थे। ये सभी मर्द वहां पे काम करते थे, और उन मर्दों के बीच ये अकेली सेथे ही थी जो उस जगह पे एज ए स्लेव ट्रेडर काम करती थी। ठीक है दोस्तों, अब पोल डी काफी सालों के बाद इसके घर में आया है,
और पोल्डी जब इसके घर आता है तब उसको उस भूत के बारे में, उस गोस्ट के बारे में पता चलता है। और पहले तो वो नॉर्मली जो सेथे वो चीजें भूल चुकी होती है, जब वो उसे मिलती है तब वो उन चीजों को बहुत याद करती है, उनको वो सारी चीजें उसकी आंखों के सामने एकदम आ जाती है कि किस तरीके से वो भागी थी या क्या क्या उसकी लाइफ में हुआ था। ठीक है, तो पोल डी भी अभी काफी एज्ड हो चुका है, काफी समय, लंबे समय के बाद वहां पे आया है। और सबसे पहले पोल डी जो काम करता है वो तो पोल डी ये काम करता है कि वो जो उनके घर का भूत होता है वो गोस्ट को भगा देता है वहां से। जी हाँ दोस्तों, वो उस गोस्ट को वहां से भगा देगा। और वो सोचता है, अब वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं, ठीक है, कि हम आने वाले समय में कैसे रहेंगे या किस तरीके से रहेंगे। पोल डी कहीं ना कहीं इंटीमेट भी होना चाहता है सेथे के साथ, सेथे के वो पसंद भी करता है। लेकिन जब वो उस गोस्ट को भगा देता है तो जो डेनवर थी वो उसके प्रति उसका व्यवहार है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वो गोस्ट जो था वो एकमात्र फ्रेंड था डेनवर का, उसके अलावा तो उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था, क्योंकि सोसाइटी में अलाउड नहीं था उनको। तो इस वजह से डेनवर को पोल डी कहीं ना कहीं बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। लेकिन थोड़े समय बाद डेनवर भी पोल डी के साथ मिलजुल के रहना शुरू कर देती है और वो क्या करते हैं, वो एक फैमिली की तरह रहने की सोच लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हमारी जो कहानी है दोस्तों वो अब थोड़ी दो शेप में चलेगी इसके बाद। एक तो इनकी फ्लैशबैक्स चलेंगे, पीछे की स्टोरी चलेगी सेथे की और पोल डी की, और पूरी कहानी कैसे हुई थी, किस तरीके से शी एंडेड अप इन इनवाइटिंग इन यू नो सिसिनाटी ओहियो। और दूसरी ओर हमारी प्रेजेंट कहानी चलेगी। अब अगर पास्ट कहानी की बात करें तो सेथे का हमें पता चलता है कि सेथे एक साउथ अफ्रीकन वुमन के यहाँ पैदा हुई थी जिसको वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी। वो भी एक स्लेव ट्रेडर थी और जब 12 या 13 साल की थी सेथे तब उसे स्वीट होम, गार्नर्स के स्वीट होम के यहाँ पे बेच दिया गया था। ठीक है दोस्तों, वहां पे स्लेव ट्रेड कर दिया गया था उसको। जैसे कि मैंने आपको बताया वहां पे सारे मर्द ही थे, बाकी जो अदर स्लेव्स थे जैसे सिक्सो, पोल डी, पोल ए, पोल एफ एंड हेले। ठीक है, सभी उस पे लस्टी ग्लासेस शो करते थे, लेकिन फाइनली सेथे चूज करती है हेले को। अब उसने हेले को क्यों चुना, क्योंकि हेले ने दिन रात मेहनत करके, जो उसको छुट्टियां होती थी उस छुट्टियों में भी काम करके उसने उसकी जो माँ थी बेबी सक्स के लिए उसने उसकी आजादी है वो खरीद ली थी काफी समय, लंबे समय तक मेहनत करने के बाद। और बेबी सक्स वहां से छोड़ के सिसिनाटी ओहियो में अपने घर 124 ब्लू स्टोन रोड में रहना शुरू कर दिया था उसने। तो इस वजह से उसे हेले बहुत पसंद था और उसने हेले से शादी कर ली थी। ठीक है, अब जो स्वीट होम्स का जो ओनर था मिस्टर गार्नर और मिसेस गार्नर बहुत ही अच्छे थे। वो स्लेव के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, नौकरों के साथ वो बहुत बढ़िया व्यवहार करते थे और सभी नौकर खुश थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, मिस्टर गार्नर की डेथ हो जाती है और जो मिसेस गार्नर है वो अपने ब्रदर इन लॉ को, जिसको लोग स्कूल टीचर के नाम से जानते हैं, उसको हायर कर लेती है। उसकी मदद मांगती है कि वो स्लेवों को काम करने में उनकी मदद करे, इनको ऑर्गेनाइज करने में। ठीक है, वो बहुत ही क्रूर होता है, वो अपने नेफ्यूज के साथ मिलकर बहुत अत्याचार करता है इन स्लेवों के ऊपर, सभी के ऊपर। और वो फाइनली स्लेव्स क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो इस घर से भाग जाएंगे। ठीक है, और जब वो ये प्लान बना चुके होते हैं तभी उन्हें पता चल जाता है उन नेफ्यूज को और स्कूल टीचर को, और वो जाके इनको पकड़ लेते हैं। सिक्सो और पोल डी को सबसे पहले वो भागते हुए पकड़ लेते हैं। सिक्सो को तो स्कूल टीचर उसी टाइम पे मार देता है, लेकिन पोल डी को वो घर ले आते हैं और पोल डी के ऊपर बहुत बुरे अत्याचार करते हैं। आयरन रोड जो है उसके मुंह में घुसेड़ देते हैं, उसकी पीठ में घुसेड़ देते हैं। बहुत बुरा अत्याचार किया जाता है पोल डी के साथ। लेकिन जो हमारी सेथे है, शी वॉज एडमेंट अबाउट रनिंग अवे, वो अभी भी भाग जाना चाहती है, क्योंकि पोल डी और सिक्सो को पकड़ लिया गया है, इतना बुरा व्यवहार किया गया है उनके साथ। नंदरलेस शी वांटेड टू रन अवे, फिर भी वो भागना चाहती है, क्योंकि उसने अपने ऑलरेडी उसके 3 बच्चे हैं उनको उसने ऑलरेडी बेबी सक्स के पास भेज दिया है ओयो में। ठीक है, तो वो अब अपने बच्चों से दूर तो नहीं रह सकती है, तो वो भागने का प्लान उसने बनाया है और वो भागने का प्लान उसके ऊपर मलन करने वाली है। ठीक है, अब जो स्कूल टीचर के जो नेफ्यूज हैं वो इनवर्ग्रेटेड थे, इनको पकड़ने के बाद बहुत ही हाई उस पे स्पिरिट में थे। तो वो क्या करते हैं, वो सेथे को पकड़ते हैं और दे मोलेस्टेड हर। ठीक है, उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। द मिल्क शी वाज सेविंग फॉर हर बेबीज बिकॉज शी वाज आल्सो विद अ बेबी। ओके, so they looted that milk and they molested him, and she was unaware of this fact that Halle was seeing her. While they were molesting her, while they were violating her, Halle was everything seeing this from on the upper side. Okay,
सो हैले आफ्टर दैट हैले गोज मैड, हैले पागल हो जाता है इस चीज को देखने के बाद। ठीक है, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ के साथ ऐसे होते हुए, एंड बीइंग ए स्लेव ही कुडंट डू एनीथिंग, सो ही गोज मैड आफ्टर दैट। ठीक है, हैले सॉरी सेथे को इस बारे में नहीं पता था। जब वो मिसेस गार्नर को इसके बारे में, इस इस पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे में बताती हैं, तो स्कूल टीचर और नेफ्यूज उसे बीप्ड करते हैं, मारते हैं चाबुकों के साथ, डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी वाज प्रेग्नेंट। ओके, तो फिर उसके बाद क्या करती है, उसके बाद सैथे वहां से फाइनली भाग जाती है। जी हाँ दोस्तों, सैथे वहां से भाग जाएगी। जंगल में जब वो पहुंचती है, बहुत थकी हारी गिर जाती है एक जगह पे, और वहां पे उसे एक व्हाइट लेडी, एमी डेनवर जिसका नाम है, वो उसे उठा के अपने घर ले जाती है और उसकी पूरी तरह से देखभाल करती है और उसे फाइनली ठीक कर देती है वो। और बाद में जब वो बोट पे लेके उसको जा रही होती है ओयो में छोड़ने के लिए, तो उस टाइम पे वो उसकी डिलीवरी में हेल्प भी करती है, उसकी डिलीवरी भी करवाती है, जिसका नाम जो हमारी सैथे है वो एमी डेनवर के नाम पे ही रखती है, और उसका नाम वो रखती है डेनवर। ठीक है, अब फाइनली वो वहां से बोट से निकल के फाइनली वो अपने घर सिसिनाटी में पहुंच जाती है। और उसकी जो दादी है, सॉरी मदर इन लॉ है, बेबी सक्स, वो पहले उसको नहलाती है अच्छी तरह से, फिर उसके उन तीनों बच्चों से उसको मिलाती है। 28 दिन तक सेथे बड़े आराम से वहां से रहती है, फ्री आजादी स्टेट में रहती है। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में वो स्कूल टीचर अपने नेफ्यूज के साथ फिर से उसे लेने आता है हॉर्स पेपर, घोड़सवारी के ऊपर घोड़सवारी करते हुए ये लोग फिर से सेथे और उसके बच्चों को लेने के लिए आ जाते हैं। अब सेथे उन बच्चों को स्लेव लाइफ नहीं देना चाहती, इसलिए वो उन्हें अपनी घर के वुडशेड की ओर ले जाती है, और वहां पे वो तीनों बच्चों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो फाइनली अपनी एक ही बच्ची को मार पाती है, जिसका नाम था बिलव्ड। एक्चुअली उसका नाम कोई भी नहीं दिया गया था, लेकिन जब मैंने आपको बताया, जब उसकी ग्रेवस्टोन सेट की गई थी, तब उस पर उसने सिर्फ बिलव्ड ही लिखवाया था। ठीक है दोस्तों, और वो जो हॉर्सेस मैन थे, जो घुड़सवार थे, स्कूल टीचर था, वो देखते हैं कि ये तो पागल हो गई है, और पागल स्लेव तो किसी काम का नहीं है, तो इसीलिए वो उसे छोड़ के वहां से चले जाते हैं। शेरिफ आता है, डेनवर और सेथे को पकड़ के ले जाता है, लेकिन जो मिस्टर बॉडविन थे, इनके लैंडलॉर्ड, वो कुछ और व्हाइट मैन के साथ दंगा कर देते हैं, और वो डेनवर और सेथे को बचा लेते हैं। एंड देन फाइनली जो हमारे डेनवर और सेथे है, वो 124 हाउस में रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता चलता है, जब हमारी कहानी जो है प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाती है, जब हमें पता चलता है कि जो पोल डी है वो इनके साथ रह रहा था। पोल डी ने उस गोस्ट को भगा दिया था घर से, और एक दिन वो कार्निवल पे जाते हैं, फेयर पे मेला देखने जाते हैं। पूरे 14 सालों बाद डेनवर और उसकी माँ से थे बाहर के निकले थे घर से, और वो क्या करते हैं, जब वो मेला देख के वापस आते हैं, वो देखते हैं कि एक लड़की गीले कपड़ों में, शूज उसके खुले हुए थे, तो बुरी हालत में पड़ी हुई थी बाहर। और जब वो उसे पूछती है कि उसका नाम क्या है, तो वो अपना नाम बिलव्ड बताती है, और वो बोलती है कि वो भी एक स्लेव ट्रेड है, मतलब स्लेव ही है, और वो भाग के आई है। ठीक है, अब जो सेथ है उसको उस पर दया आ जाती है, और वो उसे लगता है कि ये मेरी कोई अपनी ही है। उसे लगता है कि उसकी बेटी, जो बड़ी बेटी है जिसको उसने मार दिया था, वो वापस आ गई है, इस वजह से वो उसे अपने घर ले जाती है। हालांकि पोल डी इसके बिल्कुल खिलाफ था। पोल डी नहीं चाहता था कि उसको वो जो सेथ है उसको घर लेके जाए, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है, और वो बिलव्ड को घर ले जाती है। बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में डेनवर और बिलव्ड की दोस्ती बहुत अच्छी बन जाती है, और सेथे भी उसको उससे ज्यादा नहीं तो उसके जितना तो पसंद करती ही थी बिलव्ड को, तो बिलव्ड को वो भी बहुत ज्यादा पसंद करती है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो पोल डी है उसकी बिलव्ड के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है, और वो पोल डी को पूरे घर में एक रैग डॉल की तरह इधर उधर घुमाती रहती है, और एक दिन वो पोल डी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करती है। जी हाँ, विदाउट हिज अनविलिंगली उसको फोर्स करती है अपने ऊपर, और उसके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करती है पोल डी के साथ। और जब वो पोल डी के साथ सेक्स कर रही होती है, तब पोल डी को सारा अपना पास्ट याद आ जाता है, किस तरह उसको उसको उसके मुंह में घुसाड़ा गया था, रोड्स को घुसेड़ा गया था, उसकी पीठ पे रोड को घुसेड़ा गया था, उसके साथ इतना बुरा अत्याचार किया गया था। जब उसे बेच दिया गया था, किसी बंदे को बेच दिया गया था स्लेव स्कूल टीचर के द्वारा, और उसने उसको मारने की कोशिश की थी। फिर उसने उसको जो चेन खींचने वाले होते हैं उनको बेच दिया था, और फाइनली कैसे किस तरीके से उसने चेन वालों को जब एक टाइम पे मौका मिला वहां से भागने का, और उस तरीके से वो वहां से भाग के आया था और सेथी के पास पहुंचा था 124 हाउस में। तो उसको वो सारी चीजें याद आती हैं, बहुत डर जाता है, और वहां से वो भागने की कोशिश करता है। जब वो
नेबर से पूछता है उसके बारे में, सेथे के बारे में। पहले तो वो सेथे से ही पूछना चाहता है कि क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जो बुरा किया है लाइफ में, या तो सेथे उसको बताना नहीं चाहती। वो मोस्ट ऑफ द टाइम बिलव्ड के बारे में पूछना चाहता है कि ये लड़की कौन है या कहाँ से आई है, इसको हमारे बारे में इतना कुछ कैसे पता है, लेकिन वो बताती नहीं है। लेकिन फाइनली जो नेबरहुड के लोग होते हैं वो पोल्डी को बताते हैं कि किस तरीके से सेथे ने अपनी ही 2 साल की बेटी को मार दिया था, और ये हो सकता है कि उसी का भूत यहाँ पे रहने आ गया है। और ये बात सच भी है, बिलव्ड जो है वो एक्चुअली उसकी डॉटर ही है, वो उसका भूत यहाँ पे रहने आया है। और वो क्या है, वो सेथे से बदला लेना चाहती है। वो जानना चाहती है कि सेथे ने आखिर उसको क्यों मारा था छोटी उम्र में। हालांकि उसका रीजन जो था वो बिल्कुल सही था कि वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे जो हैं वो स्लेव बने, लेकिन वो बिलव्ड जो है वो इस बात को समझने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हमें पता चलता है कि धीरे धीरे क्या होता है, वो सेथे जो है कमजोर होती जा रही है, और जो बिलव्ड है वो फूलती फलती जा रही है, वो बड़ी होती जाती है, तगड़ी होती जा रही है डे बाय डे। ठीक है, और सेथे को कहीं ना कहीं वो चीज अंदर से अंदर खाई जा रही है। वो सेथे के ऊपर रोब जमाती है, अपना पूरा सेथे को उसने बिल्कुल अपने अंडर कंट्रोल करके रखा हुआ है। वो जो मांगती है सेथे उसको ला के देती है, जिस वजह से सेथे जो है वो, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, शी वॉज गेटिंग वीक डे बाई डे। अब डेनवर पहले तो बिलव्ड की बड़ी अच्छी दोस्त थी, लेकिन धीरे धीरे से पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे लिए और मेरी माँ के लिए बहुत हानिकारक है ये लड़की। तो वो क्या करती है, एक दिन वो पूरे 8 सालों के बाद वो उस घर से भाग जाती है, और वो अपनी टीचर के पास जाती है जिसके पास वो कुछ सीखने के लिए जाती थी, मिस जोन्स के पास जाती है। और मिस जोन्स से वो कहती है कि उसकी माँ को बचा लिया जाए एक लड़की से। ठीक है, मिस जोन्स है, उनके नेबरहुड में एक लेडी थी जो अंडरग्राउंड रहती थी, एला। एला इन मामलों में बहुत ज्यादा होशियार थी। वो एला को और अदर लेडीज को अपने साथ लेके जो 124 हाउस है वहां पे जाते हैं। और दूसरी ओर मिस्टर बोर्डविन आते हैं डेनवर को लेने, क्योंकि डेनवर ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें कोई काम दिया जाए, क्योंकि अब सेथे ने काम करना छोड़ दिया था। वो तो ज्यादा अपना स्पेंड कर रही थी बिलव्ड के साथ, तो घर में चूल्हा चलाने के लिए कुछ तो किसी को तो काम करना पड़ेगा ना। तो उसने मिस्टर बोर्डविन जो उनके लैंडलॉर्ड थे उनसे कहा था कि उसे कोई काम दे। अब मिस्टर बोर्डविन भी उसी टाइम पे आ जाते हैं डेनवर को काम देने के लिए, काम का बताने के लिए। लेकिन वहां पे क्या होता है, जो सेथे होती है उसको लगता है कि ये मिस्टर जो बोर्डविन है ये स्कूल टीचर है, और वो उसे मारने के लिए दौड़ती है। एंड देन जो अदर लेडीज थी वो उसको रोक लेती हैं रास्ते में, और उसी टाइम पे जो बिलव्ड थी वो डिसअपीयर्स हो जाती है, वो वहां से चली जाती है, और उसके बाद वो कभी भी उस घर में वापस नहीं आती है। ठीक है, जब बिलव्ड वहां से चली जाती है तब जो सेथे है उसकी लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो दिन ब दिन वीक होती जा रही है, और वो बेबी शख्स के बेड पे ही पड़ी हुई है, और वो भी जल्दी ही मरने वाली है। इसके बाद पोल्डी भी उसी घर में आ जाता है। पोल्डी जब उस घर में आता है तब पोल्डी उसकी पूरी देखभाल करता है। पोल्डी उसका पूरा पूरे उसकी देखभाल करता है, और वो पोल्डी से कहती है दैट शी वाज माय बेस्ट थिंग। और पोल्डी उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है कि योर बेस्ट थिंग्स थी। और इस नॉवल की जो एंडिंग है वो होती है दैट दिस स्टोरी इज नॉट टू पास ऑन। इस स्टोरी को पास ऑन नहीं किया जाना चाहिए। और बिलव्ड की जो हॉन्टेड फिगर थी उस घर से, वो इस तरीके से गायब हो जाती है, और उस घर के और नेबरहुड के लोग बिलव्ड को इस तरीके से भूल जाते हैं कि जैसे कि वो कभी भी इस घर में आई ही ना हो। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये कहानी, ये नोवेल की कहानी पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से लिटरेचर से जुड़ी वीडियोस मैं अपने चैनल पे रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ। नई वीडियो में नई अपडेट, नई कहानी लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड